morning, dear students. Hope you are safe, and I know you are staying at home due to this COVID-19 pandemic. At this moment, we suggest you to stay at home and be safe. And simultaneously, as you have got promotion to the class 10th, now you are waiting to take the admission in class 11th. And during this time, you are not supposed to waste your time. Instead of that, you can utilize this work to do some useful constructive work. What the better useful constructive work you can do is, you can join with us for the online classes. So today I am going to teach you the chemistry subject of class 11th standard. Our subject is chemistry, and myself, Parameshwar Swami, a chemistry lecturer. Dear students, I welcome you to class 11th standard. Class 11th. Class 11th standard. Can you define the subject chemistry? Of course, for many students, as I know, chemistry is an interesting, colorful subject, right? नहीं sir, आप झूठ बोल रहे हैं. Chemistry is a very interesting subject as well as it is a very colorful subject. If you are interested, or else if you are not interested, one thing I will tell you, chemistry is a highly evaporating subject. आप कितना भी ट्राई करो, ये सिस्टम में chemistry subject store नहीं होता. In order to store the chemistry in your system, you need to decrease the temperature. तो temperature तो आप decrease नहीं कर सकते. So ये system का temperature थोड़ा कम करिए. So therefore, chemistry can be stored. By that you can store the chemistry. And together we can make chemistry as an interesting and colorful subject. तो चलिए वो भी कर लेते हैं कैसा बोलिए. So before starting this class, in this class, I will explain about the overall class 11 syllabus. So before entering to the class 11, first आप इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. क्या है यहाँ पर तो बोर्ड है, बोर्ड देखना ऐसा नहीं. तो देखिए आपको क्या है. So class 11 chemistry, in this we are going to deal with the first chapter of the class 11 chemistry is some basic concepts of chemistry. Please note the topics. Some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. This is the first lesson of class 11th standard. And in this topic, almost the concept what we have studied in class 9th and 10th, we are going to look at. And the second topic is atomic structure. Atomic structure. And in this topic also, the maximum concepts we have covered in class 9. The third chapter, periodic classification of element and periodicity. Classification of elements. Classification of elements and periodicity in property. Periodicity in its properties. Periodicity in its properties. And the fourth topic,
chemical bonding and molecular structure, chemical bonding and molecular structure, molecular structure. Fifth one, states of matter, states of matter. Particularly in this topic we are dealing with liquids, gaseous state, mainly gaseous state, gases and थोड़ा लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड स्टेट्स के बारे में स्टडी करना है. सिक्स्थ टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स. Sixth one is thermodynamics. Whereas the seventh topic, equilibrium. Equilibrium. Okay. These are part first syllabus. Then say part first में 7 topics दिया है. The eighth topic, part 2, redox reaction. Redox reactions. The ninth one, hydrogen. Hydrogen. In the periodic table, we have studied hydrogen is the first element, but a class level में hydrogen के बारे में complete topic है. Hydrogen. 10th topic, S block elements. S block elements. Class level. 11th topic is P block elements. ये P block elements में particularly 13th group and 14th group, 13th and 14th group elements, 13th and 14th group elements we are going to take. 12th one, some basic principles and techniques in organic chemistry. In short, we can write general organic chemistry or complete some basic principles and techniques. So basic principles and techniques in organic chemistry. Organic chemistry. 13th topic is hydrocarbons. Hydrocarbons. The 14th one is environmental chemistry. Look at these topics. First one is some basic concepts of chemistry. Second one, atomic structure. Third, classification of elements and periodicity in its properties. Chemical bonding and molecular structure. Fifth topic, states of matter, thermodynamics, equilibrium, redox reaction. Next, hydrogen, S block, P block, organic chemistry, general organic chemistry, and then hydrocarbons, EVS, environmental chemistry. So about these 14 topics we are going to read. आज का ही क्लास में ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस को कैसे, थोड़ा देखिए फर्स्ट ध्यान से. Some basic concepts of chemistry, what we are going to deal, ये टॉपिक में क्या स्टडी करना है. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हाईलाइट करना है हमको. मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री के बारे में हाईलाइट करना है. ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बेसिक्स आप स्टडी किया है. Already you have studied this concept in class 9 and 10. Mole concept, stoichiometry, language of chemistry we can call this. As well as concepts of atoms, molecules, atomic mass, molecular mass, empirical formula, percentage composition. थोड़ा higher concept को भी आपको study करना है. Apart from what you have studied in class 9 and 10. In atomic structure, as you have studied फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इट्स डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है आप लोग. एज वेल एज यू हैव स्टडीड द एटॉमिक मॉडल्स.
J.J. Thomson's model, Rutherford atomic model, and Bohr's atomic model you have studied. And in some foundation classes you might study about quantum numbers. If so, then this topic will be very easy because the same concept again we are going to repeat. Fundamental particles, proton, electron, neutrons and its discoveries, characteristic properties. उसके बाद में how it arranged, that is atomic models, Thomson's model, Rutherford model, Bohr's atomic model, and quantum mechanical model. One more model we are going to add. बाद में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद क्वांटम नंबर्स के बारे में हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको आता है इन 9th and 10th you have written the electronic configuration, some shapes of orbitals, रूल्स के बारे में थोड़ा रिकॉल करके इन एडिशन न्यूमेरिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। द नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लास 10th में टॉपिक है ये आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। द सेम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या स्टडी किया, हाउ द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, व्हाट इज द नीड, Dobereiner-Streit, Newland, Octava, Luther, Mayer, D. Chan-Cortis, Mendeleev and modern periodic। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जितना आप स्टडी किया है वही कॉन्सेप्ट अगेन यहां पर भी along with that trends in periodic properties, that is properties, trends in its properties, periodicity, उसके बारे में भी शायद आपने स्टडी किया होगा फाउंडेशन क्लासेस में अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी छोड़ के सीबीएसई सिलेबस अगर आपका जितना भी है वो छोड़ के हायर लेवल में आप थोड़ा स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पर स्टडी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट मींस दिस इज आल्सो ए सिंपल टॉपिक्स, इसका रिलेटेड जितना भी बेसिक्स है आपको है, अगर नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको रेगुलर क्लास में हमको जो स्टार्ट करना है बेसिक से लेकर ही स्टार्ट करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट वन इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक फर्स्ट वन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो स्टोइकियोमेट्री पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ थ्योरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। नॉट ओनली थ्योरी, इन केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया स्टोइकियोमेट्री का तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है प्लस क्लास 12 में जो स्टार्टिंग सिलेबस है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 4 टॉपिक्स इन क्लास 12 में जो टॉपिक्स है वो प्लस ये 4 टॉपिक, उसके लिए जो बेसिक्स है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना आप लोग। एंड सिमिलरली chemical bonding is also very important for your objective, both for NEET and JEE। NEET इसका वेटेज जो है टॉपिक 4 का, it is the simple topic है as well as the weightage topic। आप इजीली स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उतना हार्ड नहीं है, theoretical based है। 4 क्वेश्चंस तक इसके पॉसिबिलिटीज है, 4 क्वेश्चन 4 into 4 16 मार्क्स तक आपको ऑब्जेक्टिव में नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें क्या स्टडी करना है आपको, क्लास 9th और 10th में स्टडी किया है क्या? देखिए आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ सर हमने स्टडी किया है, ओके राइट, नो प्रॉब्लम। अगर स्टडी किया है उसमें लेविस कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फॉर्मल चार्ट्स आते हैं, वो सब नहीं स्टडी किया होगा। नेक्स्ट आ गया तो बीएससीपीआर थ्योरी, बीबीटी या मोटी कुछ थ्योरीज है उसके ऊपर, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हाउ टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पर स्टडी करना है। फजल्स रूल तक भी आपको शायद हाई स्कूल में स्टडी किया होगा, दैट मींस इन क्लास 9th and 10th you might study some starting part, तो few more parts it is added in class 11। उसके बारे में टॉपिक सिंपल है, 4 क्वेश्चन तक है, इजीली स्कोर कर सकते हैं ये पार्ट। टाइम भी सेव होते हैं यहाँ पर, टाइम आल्सो यू कैन सेव। एंड इन दिस यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वहां पर थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, इजीली यू कैन सॉल्व। And these 3 topics जो है यहाँ पर some basic concept, atomic structure plus these 3 purely physical chemistry, some basic concept plus these 3 4 topics are purely physical chemistry part। जब physical chemistry part हम बोल रहे हैं physical chemistry, तो
न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको मैथमेटिक्स, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर बेसिक मैथमेटिक्स में आपको डिफिकल्टी है तो ये टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एंड अगेन इट बिकम्स टॉपर सब्जेक्ट। तो उसके लिए जितना बेसिक्स आपको चाहिए मैथ्स मैथमेटिक्स में, तो बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पर, उतना हमको हाई लेवल पे नहीं, जितना चाहिए उतना बेसिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो चाहिए वो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस इतना ही है। तो रूट लेना कैसा है, स्क्वायर, बट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट डेसिमल्स पे आते हैं, उसको कैसा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपको आना चाहिए। अगर उसमें आप परफेक्ट है तो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट कंप्लीटली इजी है, क्लास 11 एज वेल एज 12 कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट पर्टिकुलरली वी आर डीलिंग गैस लॉस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस लॉस के बारे में शायद आपने स्टडी नहीं किया होगा, एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपको। गैस लॉस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, हाउ वी आर, ये लिक्विफैक्शन क्लास 8 में होगा आपको, क्लास 8th स्टैंडर्ड, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, सिंपली वी कैन कॉल लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हायर लेवल फिजिक्स का रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स भी यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल में बताया तो भी शायद आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो हीट, डायनेमिक्स फ्लो, हाउ द एनर्जी विल फ्लो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, spontaneous reaction, non-spontaneous reaction, reversible, irreversible reactions, intensive properties, extensive properties क्या होते हैं यहाँ पर, how we are going to define the heat capacity, उसमें different relations आते हैं, how we are going to measure the internal energy, enthalpy, enthalpy टर्म एक बहुत important है, enthalpy of a system, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, enthalpy of dash, different types रहते हैं उसके अंदर, वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो उसके थर्मोडायनेमिक्स में। इक्विलिब्रियम में अगेन दो टाइप्स के, शायद इक्विलिब्रियम सम फाउंडेशन क्लासेस में एक्सप्लेन किया होगा, नहीं किया तो भी एक थोड़ा नया कांसेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में दो टाइप्स क्या है, एक वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या आता है, वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, आयनिक के पार्ट में जो एसिड बेस कांसेप्ट बोल के वो आप स्टडी किया है क्लास 10th में, एसिड बेस कांसेप्ट, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड्स, बेस, इंडिकेटर्स, उसके बारे में जो स्टडी किया, तो वो जस्ट बेसिक पार्ट है यहाँ पर, जस्ट बेसिक पार्ट। लॉ ऑफ मास एक्शंस से रिलेटेड, केपीटीसी रिलेशंस, हेंडरसन-सेसलबर्ग इक्वेशंस, जितने भी कांसेप्ट है रेगुलर क्लास में हम वहां पर डील करेंगे। इक्विलिब्रियम देखिए यहाँ पर सब बेसिक कांसेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। Now come to this part, next part 2 में रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स रिएक्शन आपको ऑलरेडी आप स्टडी किया है एक हेडिंग में, एक टॉपिक में, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन टॉपिक होगा क्लास 10th में, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन को आप स्टडी किया है। In terms of oxygen and hydrogen we have defined, right? Addition of oxygen, removal of hydrogen, ऐसे एक डेफिनेशन सब दिया होगा रेडॉक्स रिएक्शन का। लेकिन यहाँ पर क्लास 11 में इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक हमको क्लास 12th में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स है कंप्लीटली। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, वहां पर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये आपको बहुत यूजफुल है, हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शंस। आप ऑलरेडी 10th क्लास में बैलेंसिंग द इक्वेशन बोल के स्टडी किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट यूज करके हम बैलेंस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा टॉपिक सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक तो यूजफुल है। नेक्स्ट नाउ कम टू दिस पार्ट, हाइड्रोजन s ब्लॉक p ब्लॉक, प्योरली इनऑर्गेनिक पार्ट। 10th क्लास में एक पीरियोडिक टेबल है आपको, राइट, एक पीरियोडिक टेबल, तो वो पीरियोडिक टेबल थोड़ा अज्यूम करो, पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, तो वो पीरियोडिक टेबल के बारे में इन डिटेल फुल्ली क्या स्टडी। देखिए क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थर्ड टॉपिक में स्टडी किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन s ब्लॉक, p ब्लॉक, d and f ब्लॉक, उसमें हाइड्रोजन है उसके बारे में और एक टॉपिक। बाद में s ब्लॉक एलिमेंट्स वी आर सेपरेटली स्टडीइंग, p ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर दो ग्रुप है क्लास 12th में, 15, 16, 17, 18 वो ग्रुप क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, तो टोटल p ब्लॉक का स्टडी हो गया। क्लास 12th में आइए d and f ब्लॉक में वहां पर स्टडी करना पड़ेगा आपको, तो
हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट स्टडी आ गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वन टॉपिक, हाइड्रोजन सेकेंड टॉपिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, दिस आर द कंप्लीट सेपरेट टॉपिक्स। इनऑर्गेनिक पार्ट में आता है पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड टॉपिक्स। इंटरकनेक्टिविटी रहता है इसके अंदर। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ऑल द प्रॉपर्टीज यू कैन नो। सो दैट इज अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, ओनली 2 ग्रुप्स, एंड पी ब्लॉक 2 ग्रुप। स्टार्टिंग पार्ट दिया है यहां पर, वैसे क्लास 12 में और रिमेनिंग ग्रुप्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। तो दैट इज नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज यू हैव स्टडीड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लास 10 में स्टडी किया होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपने स्टडी किया है, जैसे उसका बेसिक्स, टेट्रावैलेंसी, केटनेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, आईयूपैक, नॉमेनक्लेचर्स, राइट, ये तो आप स्टडी किया है। वही कॉन्सेप्ट और एक बार हमको यहां पर भी स्टडी करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बोल के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो है हर एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग चेंज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। रिएक्शन नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को स्टडी करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th में कंप्लीट 1 पार्ट जो बुक है आपका सेकंड पार्ट में प्योरली ऑर्गेनिक है। टोटल केमिस्ट्री में 33% ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आपको पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। 33% फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, 33% ऑर्गेनिक पार्ट, 33% इनऑर्गेनिक, इक्वल वेटेज है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 इक्वल परसेंटेज होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है प्योरली मेमोरी बेस्ड कांसेप्ट है, प्योरली मेमोरी बेस्ड कांसेप्ट रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स चाहिए उसके लिए। और ऑर्गेनिक यू नीड टू प्रैक्टिस, रिएक्शन मैकेनिज्म्स रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट स्टडी करना पड़ेगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन्स। ये जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपने स्टडी किया होगा, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। तो डिटेल में ज्यादा रिएक्शन आप स्टडी नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन्स में यू हैव स्टडीड मेबी अल्केन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में, प्लस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करना है, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में जितना भी रिएक्शंस आते हैं, ऑल द रिएक्शंस अगेन यू आर गोइंग टू रिपीट इन क्लास 12। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा करते हैं, अगर एक रिएक्शन सब A + B = C + D, एक रिएक्शन ऐसा स्टडी किया तो वो रिएक्शन रिवर्स दूसरे टॉपिक में रहता है, रिवर्स रिएक्शन रहता है। प्रिपरेशन एक टॉपिक में प्रिपरेशन स्टडी किया तो दूसरे टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते वही रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो बस। तो ऑलमोस्ट रिएक्शंस, जितना भी रिएक्शंस आते हैं, नेम्ड रिएक्शन जितना भी है पूरा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेम्ड रिएक्शंस विद इट्स मैकेनिज्म्स यू नीड टू स्टडी। ऑर्गेनिक परफेक्ट होना है तो नेम्ड रिएक्शंस प्लस उसका मैकेनिज्म्स आपको देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्कोर इन ऑर्गेनिक पार्ट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो बेसिक पार्ट है, आप ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया है। वंस अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑर्गेनिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिक पार्ट। तो ऑर्गेनिक यहाँ पर 2 टॉपिक्स ऑर्गेनिक पार्ट का है, 4 टॉपिक्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कस यू कैन ऐड इन फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक प्योरली इनऑर्गेनिक पार्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी ऐड कर सकते हो। एंड दीस 2 आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। दिस इज योर सिलेबस हो गया। ओवरऑल केमिस्ट्री हमने कंप्लीट किया। तो कौन सा टॉपिक में क्या स्टडी करना है हमको, what are the concepts we are going to learn in the topics we have explained। And then for the point of competitive examinations कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमको, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट सब बेसिक,
केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए ये इजी टॉपिक है, इंटर रिलेटेड रहता है, तो पूरा इनऑर्गेनिक रहता है। ये 4 टॉपिक जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 2 टॉपिक है ऑर्गेनिक में, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रहना पड़ेगा, इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। ये मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जस्ट डेफिनेशंस थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वहां पर कॉन्सेप्ट स्टडी किया तो आगे आप इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। And okay, these are the topics we are going to deal in the further classes. In the next class, we will discuss about the first topic. We'll start this lesson from the next class onwards. Actual topic.